So today we will discuss the case study of first 2022 and 2023 paper, which I have already discussed, right? Before that, what is important that you should know for the case study? That also, that is how to draw the diagram of shift in demand and supply. That diagram also everyone should know how to prepare. If you have attended my previous lecture or watched on YouTube, then you might be knowing how to prepare the diagram of increase in demand, decrease in demand, and similarly increase in supply and decrease in supply. And we will also discuss what theory questions are important for the upcoming exam, right? And if anyone have any doubts, so they can ask those doubts also. And all the numericals we have already discussed in the last 2, 3 lectures, right? All those numericals are important. And I have already informed that at least 55 to 60 marks will be numericals only, maybe more, maybe 70 marks might also be the numericals, right? So all the numericals that we have discussed, all those are important, which you should watch the videos that the past 3 videos also. And because you can score full marks in numericals. And case study also you can score good marks because we know the case study will be on shifts in demand and supply. So what is shift in demand and supply? You have to draw the diagram of shift in demand and supply. What everyone should remember is this, the original diagram, equilibrium diagram, we prepare this x-axis, y-axis, and then this supply curve SS and the original demand curve DD. इक्विलिब्रियम डायग्राम सबको पहले पता होना चाहिए, y एक्सिस पे प्राइस, x एक्सिस पे क्वांटिटी, SS और DD, ये तो बेसिक बनाना ही है, एंड द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट. And if in the case study you identify demand is increasing, so you have to shift the demand curve on the right side. And if demand is decreasing, you have to shift the demand curve on the left side. Supply curve will be at the same place. Similarly, if there is an increase in supply, you will shift the supply curve on the right side, and decrease in supply, you will shift the supply curve on the left side. Right? These diagrams are there in your textbook also. And I might have written the page number also, that the markings which I have sent of economics, accounts, and FM already. Right? So these diagrams also, if you don't remember, so you can just note the page number कि कहाँ पे ये diagrams है जो मैंने marking भेजा है वहाँ से, right? और वहाँ से भी तुम लोग draw कर सकते हो. मेन डायग्राम बनाना तो आ जाएगा सबको. मेन है कि केस स्टडी पढ़ के आइडेंटिफाई करना, राइट, आइडेंटिफाई करना कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिमांड सप्लाई क्या हो रहा है. तो 2024 का केस स्टडी तो कल हमने डिस्कस किया था, और तीनों केस स्टडी का एक अलग लेक्चर भी ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है. बट आज मैं ब्रीफ में वापस थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, बिकॉज दिस इज द लास्ट लेक्चर बिफोर एग्जाम ऑफ इकोनॉमिक्स. एक दिन पहले वापस एक लेक्चर होगा, डाउट्स यही होगा, उसमें कुछ मैं न्यू एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ. कुछ और अगर हमें नया मिला या कुछ ऐसा होगा, वो मैं वापस एक बार लाइव में एग्जाम के एक दिन पहले तो सब सब्जेक्ट्स के लेक्चर हैं. वन डे बिफोर डेली देयर विल बी वन लेक्चर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, but this is the last lecture of paper solving and any important before exam of economics. So this is 2022 question paper. In 24 EV vehicles पे था. ये भी क्या है, CNG vehicles के ऊपर है. ये भी कि हाई फ्यूल प्राइसेस पर डिमांड फॉर CNG vehicles, कि CNG vehicles का डिमांड इंक्रीज हो गया था बिकॉज पेट्रोल, डीजल, बाकी फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे, राइट. और ये मारुति कंपनी ने इन्फॉर्म किया ऐसे, और मारुति सुजुकी ने स्ट्रॉन्ग डिमांड विटनेस किया CNG पावर व्हीकल्स का, और उसने एक्सपेक्ट किया कि मोर देन 80% ग्रोथ
in such vehicles. इस पे ऐसे लगा और कि इसमें 80% और ग्रोथ होने वाला है इन दिस सीएनजी सेगमेंट, क्योंकि ये तो 2-3 साल पुराना पेपर है, 22 का है, 3 साल पुराना पेपर है, राइट। 4 में ईवी, आजकल तो ईवी पे आ गया है, बट तुम लोगों को भी ऐसे ही कोई केस स्टडी आएंगे। अब इसमें और क्या लिखा है कि इंडिया लार्जेस्ट कार मेकर सोल्ड अबाउट 1.6 लाख सीएनजी व्हीकल in financial year 21 and expects this number climb to about 3 lakh in the current financial year. 1.6 लाख और अभी 3 लाख हो जाएगा, ये और इंक्रीज होगा, ऐसे भी ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। Generally, the increase in fuel prices impact consumer sentiment negatively. However, one good thing which has happened for us, it has increased, huge increase in the demand for CNG. पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ना कंज्यूमर के लिए अच्छा नहीं है, बट इस कंपनी के लिए ये पॉजिटिव इसलिए हुआ कि सीएनजी कार्स का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज सीएनजी का प्राइसेस इतना ऊपर नहीं गया है जितना कि पेट्रोल और डीजल का गया है, और सीएनजी का जो कॉस्ट पर किलोमीटर है वो बहुत कम होता है। और he said that in addition to the surge in fuel prices, the increase in the network of CNG stations had also helped the growth. फ्यूल प्राइसेस का डिमांड बढ़ा, उसकी वजह से तो सीएनजी कार्स का डिमांड बढ़ा ही है, लेकिन एक और रीजन है कि सीएनजी स्टेशन भी अभी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं और सीएनजी भी हर जगह अवेलेबल है, और उसकी वजह से भी सीएनजी व्हीकल्स का डिमांड इंक्रीज हुआ है। द कंपनी ने 83,000 सीएनजी व्हीकल्स सितंबर में सेल किया, जो 14% ऑफ टोटल सेल्स था, and CNG vehicles accounted for 11.5% of the company's sales in financial year 21, and 20 में 7.4 था, so this percentage is continuously increasing. Asked about sales during the Navratras, Mr. Srivastava said that an inquiries grew 11 to 13% compared with the same period last year, और last year के मुकाबले इस साल भी 11 से 13% तक ये increase हुआ है, right? While retail sales were down by 20% because of the non-availability of stock. Stock नहीं था, उसकी वजह से sales 20% से कम हुआ है, but booking 11 से 13% से increase हुआ है। और stock क्यों नहीं था? Because stock at the dealership semiconductor shortage. CNG vehicle में जो semiconductor use होता है उसका shortage था, और इसीलिए supply कम थी। अब यहाँ पे ये 30 मार्क्स का था, तुम लोगों को तो 20 मार्क्स का आएगा केस स्टडी, राइट। तो आर पेट्रोल एंड सीएनजी रिलेटेड गुड्स? तो यस, पेट्रोल एंड सीएनजी आर रिलेटेड गुड्स। पेट्रोल एंड सीएनजी आर रिलेटेड गुड्स। इफ यस, what is the type of relationship between the two? पेट्रोल एंड सीएनजी सब्स्टिट्यूट है कि कॉम्प्लीमेंट्री है? कि हमें अगर पेट्रोल लेना पड़ेगा तो सीएनजी भी लेना पड़ेगा, अगर दोनों गुड्स साथ में लेने पड़ेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और अगर एक के बदले दूसरा लेना पड़ता है वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। यस यस, कोदिमंता, एनी डाउट? नो सर, वही सब्स्टिट्यूट गुड ही है, वही बोला था। राइट, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तीनों साल का केस स्टडी देखोगे ना तो बहुत इजी था, 24 का भी, और ऐसे कोई हार्ड नहीं था कि तुम लोगों को जिसको भी डायग्राम केस स्टडी से डर लगता है, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर डायग्राम में प्रॉब्लम है या केस स्टडी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो बहुत जनरल होता है, ठीक है, जनरली बहुत इजी होता है इसको में ये केस स्टडी। तो देयरफॉर ये क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू सब्स्टिट्यूट गुड्स? वुड द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बी पॉजिटिव और नेगेटिव? ठीक है ना, वुड द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का नेगेटिव होता है। ठीक है, तो देयरफॉर ये भी याद रखना है, जो ऑलरेडी मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, और इस 12th स्टैंडर्ड की जो टेक्स्ट बुक थी उसमें से भी मैंने बताया है, राइट। और जो नोट करने भी बोला है पहले के लेक्चर्स तुम लोग सुनोगे तो बस इतना ही याद रखना है। व्हाट वुड बी द साइन
of cross price elasticity between CNG and CNG car. अब ये तो था कि किसका पूछा था, ये दोनों का, पेट्रोल और सीएनजी का, इसका सब्स्टिट्यूट का। यस, बट सेकंड क्वेश्चन में किसका पूछा है, सीएनजी और सीएनजी कार का। तो अगर हम सीएनजी कार खरीदेंगे तो हमें सीएनजी भी खरीदना ही पड़ेगा, तो दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। उनका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा, ठीक है ना। एंड व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन डिमांड कर्व फॉर सीएनजी कार्स इफ पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज, पेट्रोल प्राइस बढ़ने से सीएनजी कार की डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा, पेट्रोल राइज होगा। हाँ, डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि पेट्रोल प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल वाली कार का डिमांड कम होगा, तो सीएनजी कार का डिमांड बढ़ेगा, राइट। और अगर इसमें ऐसे लिखा होता है कि डायग्राम बनाओ, यहाँ ऊपर तो नहीं लिखा है 24 में, यहाँ लिखा होता है क्वेश्चन ना, तुम लोग सिर्फ यहाँ पे मत देखना, कभी कभी वो लोग ना एकदम स्टार्ट में दे देते हैं, यहाँ पे भी दे देते हैं कि ड्रॉ सुटेबल डायग्राम्स वेर एवर नेसेसरी, ऐसे वो लोग यहाँ इंस्ट्रक्शन में भी लिख के देते हैं कभी कभी। और 24 के पेपर में जैसे हमने कल डिस्कस किया था, तो यहाँ लिखा था, यहाँ इसके बाद कि आंसर द बिलो एंड ड्रॉ सुटेबल डायग्राम्स, और यहाँ नहीं लिखा था, यहाँ नहीं लिखा था डायग्राम बनाने, बट कहीं पे भी लिखा है whether at the start here, start of the case study, or at the start of the paper, or in the question, wherever if anywhere it is mentioned कि draw suitable diagram, so you should draw this diagram. और डिमांड कर्व इंक्रीज होगा तो डायग्राम कौन सा बनेगा, जो अभी मैंने यहाँ पे बताया, ये वाला डायग्राम बनाना है। और सिर्फ डिमांड कर्व को राइट में शिफ्ट करो और ये दो इक्विलिब्रियम पॉइंट P0 और E1 शो करो, दैट्स इट। कि पहले प्राइस P0 था, क्वांटिटी Q0 था, डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ तो डिमांड Q1 हो गया और प्राइस भी इंक्रीज होगा। अगर वो लोग ये भी पूछते हैं कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द डिमांड कर्व, तो वो तो राइट में शिफ्ट होगा, लेकिन इम्पैक्ट ऑन द प्राइस एंड क्वांटिटी भी अगर कभी कभी पूछ सकते हैं वो लोग, तो इम्पैक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी अपने आप पता चल जाएगा जब तुम ये डायग्राम बनाओगे। तो यहाँ पे देखोगे तो क्वांटिटी बढ़ रही है और प्राइस भी बढ़ रही है, तो इम्पैक्ट ऑन क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विल इंक्रीज एंड प्राइस विल आल्सो इंक्रीज, राइट, क्लियर। सो इतना ही याद रखना है। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी था, फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी इजी। But sir, Yes. sir, in this question paper, they haven't written anything about the diagram anywhere, right, sir? So if we don't draw the diagram, so then we'll get the marks or what, sir? This question you have asked yesterday also, and I said you should prefer drawing the diagram in the case study. Case study में diagram बनाओगे तो अच्छा है। देखो इसने बनाया है, बट इसने वो लाइंस नहीं ड्रॉ किया है, तो इसके 2 मार्क्स कट हो गए हैं, राइट, है ना, राइट, 2 मार्क्स कट हो गए ना। डायग्राम बनाया फिर भी कट हो गए, अब पूछा नहीं है, 2 मार्क्स क्यों कट हुए, बाकी तो इसने सब राइट लिखा है, राइट यहाँ से। तो डायग्राम को खाली क्या करना था, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बताना था। बट ये भी ठीक है ऐसे, क्योंकि इन लोगों ने खाली क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया। बट जब भी वर्ड कर्व आएगा, यस्टरडे आल्सो आई सेड कि डिमांड कर्व पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर पूछ रहे हैं, तो डायग्राम पक्का बना देना। और सिर्फ डिमांड पे पूछेंगे तो फिर नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम इन द केस स्टडी, बिकॉज केस स्टडी वो डिमांड कर्व पे क्या इम्पैक्ट होगा उसी के बेसिस के लिए वो केस स्टडी पूछी जाती है। और 99% दे विल मेंशन कि ड्रॉ सुटेबल डायग्राम, ये तुम्हारे क्वेश्चन में मेंशन होगा। इस पेपर में नहीं है, बट इट विल बी देयर इन योर पेपर, ठीक है, तो यू विल नॉट बी कंफ्यूज, क्लियर। एंड ड्रॉ द डायग्राम बना दो, नहीं भी पूछा है तो भी बना दो, क्लियर, सो दैट you are not giving any chance to the faculty to deduct marks, ठीक है ना। इको में ये टाइप के क्वेश्चंस में केस स्टडी में डायग्राम बनाना ही होता है, even if it is not asked. Then
The second question is, during the economic slowdown caused by the COVID-19 pandemic, employment and individuals' income were falling. See, this question is not related to this case study. ये 15 मार्क्स का जो नीचे क्वेश्चन है ये अलग है. खाली जो ये फर्स्ट वाला है ये केस स्टडी से रिलेटेड है. ठीक है, बट अभी तो तुम लोगों को क्या 20 मार्क्स का ही मैथ्स क्वेश्चन है, तो तुम्हें जो भी आएगा वो केस स्टडी से रिलेटेड रहेगा. बट ऐसा सेपरेटली भी आ सकता है. ये क्या है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन और कोविड-19 की वजह से एम्प्लॉयमेंट कम हो गया और इंडिविजुअल इनकम फॉल हो गया. तो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन द डिमांड कर्व फॉर ऑटोमोबाइल्स ड्यू टू दिस? एक्सप्लेन योर आंसर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम कम होगा तो तुम ऑटोमोबाइल्स कम खरीदोगे कि ज्यादा खरीदोगे? कम खरीदेंगे. कम खरीदेंगे. कम खरीदोगे, है ना? तो क्या इम्पैक्ट होगा डिमांड कर्व पे? ये भी बहुत कॉमन आंसर है. क्या इम्पैक्ट होगा? शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट फॉर राइट. हाँ, तो शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट वाला डायग्राम भी बना दोगे, राइट? तो यहाँ पे व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन डिमांड कर्व? तो डिमांड कर्व फॉर ऑटोमोबाइल्स will be that it will decrease. The demand curve will shift towards left as shown in the diagram. बोल के फिर तुम्हें ये वाला डायग्राम बना देना है, राइट? लेफ्ट में डिमांड कर्व को शिफ्ट करना है ओरिजिनल डिमांड कर्व से, राइट? और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बहुत सारा, बस दो ही बनाना है, दो, E1, E2 या E0, E2 लिखा है, कुछ भी उसको नंबर दो. ये खाली लाइन एक्स्ट्रा है, वो नहीं बनाओगे तो चलेगा. और एरो वैरो भी नहीं डालोगे तो भी चलेगा, या डालना है तो जितना तुम लोग नीट बना सकते हो. बट इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों बताना है, दोनों बताना है. प्राइस और क्वांटिटी भी दोनों बताना है, ओल्ड एंड न्यू वन, राइट? क्लियर है ना? इसको इसमें तो मार्क्स मिला नहीं है, बट इसने शो किया है कि इनकम इलास्टिसिटी की वजह से डायग्राम तो इसने राइट बनाया है, राइट? बट इसमें 3 ही मार्क्स दिया है क्योंकि इसने आगे का क्वेश्चन का आंसर बराबर नहीं लिखा है, राइट? तो 15 में से 3 ही मिला है. सर डायग्राम एक बार दिखा सकते हो? इसका नहीं, that which you were showing. Yes sir, this is the actual diagram ना सर? यस यस, ये तुम्हारी बुक में भी है और ये लाइन की जरूरत नहीं है. और बुक में ना मैंने पेज नंबर्स भेजा हुआ ही है. तुम लोग जो भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं उनको स्टार मार्क करके रख लेने का, या खुद को ही फॉरवर्ड कर लो व्हाट्सएप पे, ताकि तुम लोगों को वो इजीली मिल जाए, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस होते हैं ग्रुप में. सो you can forward it to yourself, and or you can even star mark those messages so that you are easy to find those. You can easily find those messages which are important, right? Clear? So this is also clear. अब और क्या इसमें पूछा है कि ये तो हो गया. Explain your answer using the concept of income elasticity of demand. अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि विद द चेंज इन इनकम, व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी? हाउ मच द डिमांड विल चेंज विद द चेंज इन इनकम. हाउ मच द डिमांड विल चेंज, और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, दैट इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी. तो अगर तुम्हें इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स, ये भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है, आई गेस मैंने भेजा ही है. ठीक है, मैंने तो ये टेक्स्ट बुक में भी बताया था. उसका मीनिंग भी सबको पता होना चाहिए, और टेक्स्ट बुक में जहाँ पे भी है वो पेज नंबर्स भी तुम लोग मार्क कर सकते हो. और एक और चीज अच्छे से क्या कर सकते हो कि इतने पेज नंबर्स तुम लोगों को याद नहीं भी रहेंगे, क्योंकि लिखना अलाउड है. तो तुम लोग कोई भी जो पीछे नोट्स का एक पेज होता है प्लेन, या बीच में कहीं होता है, एकदम स्टार्टिंग वाले पेज पे मत लिखना. जहाँ पे भी होता है ना वहाँ तुम एक अपना इंडेक्स बना सकते हो. यहाँ पे तुम टॉपिक लिखोगे, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, कि जैसे ये वाला है इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, और वो पेज नंबर वहाँ पे लिख के लेके जा सकते हो, ताकि तुम्हें हेल्प हो जाएगा फाइंड करने में, राइट? इफ यू प्रिपेयर, मतलब तुम लोग मेहनत करोगे. ये तो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, ऐसे तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक है उस पर तुम लिख के लेके जाओगे, राइट?
जो जो इम्पोर्टेंट है, या इंडेक्स में अगर ऑलरेडी तुम्हें पेज नंबर पता है तो यू विल हैव टू गो थ्रू टेक्स्ट बुक। ऐसे डायरेक्ट लेके जाओगे और ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, तो तुम्हें थोड़ा 1-2 घंटा टेक्स्ट बुक के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और हर पेपर के पहले या अभी से, और अपना हिसाब से कि कौन सी चीज कहाँ है वो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, या उसको लिख के कहीं पे याद रखना पड़ेगा, राइट, सो दैट इट इज इजी। यस पार्ट। सर फिर इसमें इनकम इलास्टिसिटी का अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो प्राइस के बदले हम लोग इनकम लिखेंगे और आउटपुट जहाँ पे वहीं रखेंगे ना, एक्स के एक्सिस पे आउटपुट और वाई एक्सिस पे इनकम लिखेंगे ना? नहीं 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 नहीं, नहीं, डायग्राम में तो हम वही लिखेंगे। डायग्राम हमारा ये जो है, इसमें हम कभी भी इनकम नहीं मेजर करते। डायग्राम जो है ना, हाँ इसमें जी। तो वही लिखेंगे प्राइस और क्वांटिटी। यहाँ पे जब हम डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं ना, इसने यहाँ पे इनकम लिखा है, राइट, ओके, हाँ। कि इनकम कम होगा तो वैसे, बट इनकम इलास्टिसिटी का इन लोग ने बोला नहीं है। डायग्राम इनकम इलास्टिसिटी का बनाने भी नहीं बोले। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन डिमांड कर्व है, तो हमें डिमांड कर्व का ही बनाना है। इसको मार्क्स क्यों नहीं दिया है, क्योंकि इसने इनकम लिख दिया है वही, बट हम ऐसा कोई डायग्राम नहीं बनाते हैं, राइट। सर डिमांड कर्व पे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा ना? हाँ डिमांड कर्व पे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा ना? हाँ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और यहाँ पे प्राइस ही लिखना है तुम्हें, ठीक है ना। You don't have to draw demand curve for income elasticity. डिमांड कर्व हम नॉर्मली बनाएंगे, लेकिन इन लोगों ने खाली इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने बोला है, और उसको एक्सप्लेन करके इस आंसर को जस्टिफाई करना है। तो उसके लिए ही मैं बता रहा हूँ कि इनकम इलास्टिसिटी का मीनिंग जो है तुम्हारी बुक में है ऑलरेडी। यहाँ पे तो मैं बता देता हूँ, तुम्हारी बुक तो मेरे पास नहीं है अभी, पीडीएफ फॉर्म में नहीं है ना। अगर तुम्हारी बुक पीडीएफ फॉर्म में हो ना, तो मैं और अच्छे से पढ़ा दूँ। अब इतनी बड़ी बुक का पीडीएफ बनाना भी बड़ा प्रॉब्लम है, अलग अलग चैप्टर का बनाना पड़े तो और इजी हो जाए, क्योंकि उसमें से मैं तुम लोगों को शो करके और बता सकता हूँ कि कहाँ पे क्या है। ये तो मैंने खाली रेफर किया और बताया। तो व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। तो इनकम इलास्टिसिटी, what is it refers to the degree of responsiveness of a change in quantity demanded to a change in the income only. अलग अलग इसके डेफिनेशन होते हैं, यही वर्ड्स लिखने नहीं है। हिंदी में मैं बोलूँ तो अपने वर्ड्स में लिखो कि इसका मीनिंग ये होता है कि डिमांड कितने परसेंटेज से या कितना चेंज होगा अगर इनकम चेंज होती है, तो बाकी सब फैक्टर्स सेम रहेंगे, प्राइस भी सेम रहेगी, प्राइस की वजह से चेंज नहीं होगा, राइट। दैट इज इनकम इलास्टिसिटी। और उसका पॉइंट मेथड का ये फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, राइट। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी तुम लोगों को लिखना है, ये भी तुम लोगों को लिखना है, राइट। जब भी इनकम इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पूछेंगे तो उसका मीनिंग लिखने के बाद ये तो लिखना ही है। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या लिखोगे कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी किसका होता है, नॉर्मल गुड्स का। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी किसका होता है, इंफीरियर गुड्स का। जीरो इनकम इलास्टिसिटी किसका होता है, नेसेसरी गुड्स का। और नॉर्मल में लग्जरी गुड्स भी आ जाते हैं। नॉर्मल और लग्जरी का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इंफीरियर गुड्स का होता है, और जीरो नेसेसरी गुड्स का होता है। और पॉजिटिव में अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमने बोला था कि वो लग्जरी गुड्स होते हैं, और अगर 0 से 1 है तो वो नॉर्मल गुड्स होते हैं, राइट। ऐसे भी हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ठीक है ना। यस, एनीवन हैव एनी डाउट? सर एक बार क्वेश्चन निकाल सकता हूँ? यस। So here in the saying what is the impact on the demand curve by automobile, that understood. Explain your answer using the concept of income elasticity of demand. So in that, what do we write, sir? Yes, that only I am explaining. What you will write is the meaning of income elasticity. That only I am explaining. You have to write the meaning and you have to write this 3. Okay. Or which goods, and then you will say कि automobiles is positive है ना, मतलब पॉजिटिव यानी इनकम कम हो रहा है तो ऑटोमोबाइल्स का डिमांड भी कम होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वो ऑटोमोबाइल्स में अब देखो कार भी आ सकती है या 2 व्हीलर भी आ सकता है, तो हम उसको नॉर्मल या लग्जरी गुड्स कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। बट
क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल्स में टू व्हीलर पकड़ो तो लग्जरी गुड्स नहीं भी बोल सकते हैं, बट यू कैन राइट एनी। और ऐसे ये एक्सप्लेनेशन देना है कि नॉर्मल या लग्जरी गुड्स का पॉजिटिव इनकम होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या, इनकम एंड डिमांड मूव इन द सेम डायरेक्शन। इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम होगा। दैट इज नोन एज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, है ना। और नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, if income increases demand will decrease, and if income decreases demand will increase, like that. And zero matlab those goods which the demand of those goods will not depend on income. Income बढ़ेगा या कम होगा, जो goods का demand change ही नहीं होगा, उसको हम zero income elasticity बोलते हैं। और वो necessary goods like salt, medicine and all, right? जो भी ऐसे गुड्स है कि हम इनकम की वजह से वो नहीं खरीदेंगे, कि इनकम ज्यादा है तो ज्यादा खरीदेंगे, इनकम कम है तो कम खरीदेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? क्लियर? तो मीनिंग कॉन्सेप्ट लिखना है बस, और एक्सप्लेन करना है कि ऑटोमोबाइल इज नॉर्मल और लग्जरी गुड्स, तो इट्स इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का मीनिंग बताना है कि both will move in the same direction, and therefore if income is decreasing, the demand for automobile will decrease and the curve will shift towards left. Clear है? Clear है? Yes, sir. Yes. तो easy है, right? अब ये तो कितना easy था, 24 का कल ही डिस्कस किया, वो भी बहुत easy था केस स्टडी। यस, जैसे आपने अभी ये वाले इसमें बताया, तो इसमें वो लिखना पड़ेगा ना, assuming that supply is constant. हाँ, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सिर्फ सप्लाई नहीं, अदर Okay. फैक्टर्स मतलब सब आ जाता है उसमें, है ना। नहीं, Price, जैसे भी जो राइट, वो जो था ना राइट वर्ड शिफ्ट हुआ था, तो उसमें तो इंक्रीजिंग बोथ क्वांटिटी डिमांड और प्राइस दोनों इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला जो इम्पैक्ट ऑन पेट्रोल प्राइस एंड इंक्रीज ऑन सीएनजी कार डिमांड, उसी क्वेश्चन में जो सेकंड फर्स्ट वाला पार्ट था, सीएनजी कार्स, अगर पेट्रोल प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा ना इसका, सीएनजी कार्स का। सीएनजी कार का डिमांड बढ़ेगा, बट प्राइस सीएनजी का नहीं बढ़ रहा है, पेट्रोल का बढ़ पेट्रोल रहा है। का बढ़ रहा है, नहीं वो नहीं कह रही मैं, तो वो कह रही फिर अज्यूम ये करेंगे ना कि सप्लाई इज कांस्टेंट फॉर दैट, ये हाँ, बोल रहे थे मैं। वो तो एज्यूम्पशन है ही। जब भी तुम इनकम इलास्टिसिटी का मीनिंग लिखोगे ना, हाँ, तो उसमें ही वो लिखना है तुम्हें कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम, इनकम ओनली अदर फैक्टर्स, उसमें सब आ जाएंगे, तुम वो अलग से मेंशन करो। ओके, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ दिस गुड, एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, फिर बाकी सारे फैक्टर्स जो भी और रहते हैं जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए। ओके, ओके, ठीक है, कॉन्सेप्ट में ही लिखना है, अनचेंज, वो कॉन्सेप्ट में ही लिखना है, राइट? ओके। तो ये तो हमारा 22 का पेपर था, इसमें हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस किया है, राइट? अब पहले हम 23 का केस स्टडी कर लेते हैं, फिर इसमें कुछ और थियरी वियरी आया है वो भी हम देख लेंगे, राइट? अब 23 का केस स्टडी, ये मिल्क इंडस्ट्री पे था, ये भी हमने डिस्कस किया था एक लेक्चर में, राइट? इसमें क्या दिया हुआ है कि डिमांड और सप्लाई जो मिल्क इंडस्ट्री का है वो बहुत ही इंट्रिग्यूइंग है इंडिया में, यानी बहुत चेंज हुआ है। डिस्पाइट इंडिया बीइंग अ कंट्री विद द हाईएस्ट लाइवस्टॉक, मिल्क इन इंडिया वाज वन ऑफ द शॉर्टेजेस। पहले इंडिया में मिल्क का शॉर्टेजेस था, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखा है ये केस स्टडी में। मिल्क प्राइसेस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस वाज वेरी हाई, और मिल्क प्राइस जो था वो बहुत ही हाई था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। और इंडिया वाज एन इंपोर्टर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, दिया है कि इंडिया मिल्क इंपोर्ट करती थी। और रीजन क्या था कि जो कॉस्ट ऑफ कैटल फीड था वो बहुत ज्यादा था, यानी जो गाय भैंसों को चारा खिलाते हैं, कैटल को फीड करते हैं, उसका कॉस्ट ज्यादा था, और उसकी वजह से जो दूध का कॉस्ट था वो ज्यादा था, और सूखा भी बहुत जगह पे पड़ गया उससे भी। और ये जो है
चारा का कॉस्ट बढ़ गया और इसकी वजह से प्राइस ऑफ मिल्क ऑल्सो इंक्रीज। और एक और रीजन था मैड काउ डिजीज, जो काउ को हो गई थी वो टाइम पे बहुत सारे काउस को, तो उसकी वजह से फूड कॉस्टली हो गया था। और इंडियन डेयरी इंडस्ट्री डिपेंडेड ऑन द फेट ऑफ फ्यू लार्ज मिल्क कंपनी। तो इंडिया में मिल्क कुछ लार्ज कंपनीज पे डिपेंडेंट हो गया था क्योंकि ये सब रीजंस थे कि सप्लाई शॉर्टेज था मिल्क का, ऐसे हमें यहाँ से पता चल रहा है, ये सब रीजंस की वजह से। और उसके बाद व्हाइट रिवॉल्यूशन आया, ये बड़ा सबसे दुनिया का डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन ने लाया था, ऑपरेशन फ्लड बोल के। और इसने क्या किया था, इसने जो इंडिया जहाँ इंपोर्ट करता था और जहाँ पे मिल्क की शॉर्टेज थी, उसको डेयरी डेफिशिएंट नेशन से ग्लोबल लीडर इन मिल्क प्रोडक्शन बना दिया। कैसे बनाया, यहाँ पे दिया है कि इस प्रोग्राम के थ्रू जितने भी हर विलेज के मिल्क प्रोड्यूसर्स थे उनका एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया और वो सोसाइटी सबसे मिल्क लेती थी और उनको चारा और बाकी इनपुट भी प्रोवाइड करती थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मैनेजमेंट प्रोवाइड करती थी जिससे कि दूध का प्रोडक्शन बढ़ा। और ये लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल के दूध को बेचती थी, यानी सब फार्मर्स का, तो इससे उनको प्राइस भी अच्छा मिला और क्वालिटी ऑफ द मिल्क एंड क्वांटिटी भी इंक्रीज हुआ। और ऑन द डिमांड साइड टू लॉट ऑफ चेंजेस के। तो यहाँ तक जो है ना पूरा सप्लाई के ऊपर है। यहाँ पे क्या है कि सप्लाई शॉर्टेज था, ये सब रीजन से। इस पैरा में क्या है कि सप्लाई इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ इंक्रीज, वो जो ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम लाया जिसमें कि ग्लोबल लीडर बन गया और उसमें कोऑपरेटिव बनाई गई फार्मर्स की, राइट। और कोऑपरेटिव बना के फिर क्या किया गया, उनसे मिल्क प्रोक्यूर किया, उनको इनपुट्स प्रोवाइड किए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मैनेजमेंट प्रोवाइड किया। इस वजह से सप्लाई इंक्रीज हुई। अब थर्ड में और फोर्थ में डिमांड के बारे में पूरा दिया हुआ है कि डिमांड ऑफ मिल्क में क्या हुआ। क्योंकि वीगन कल्ट ज्यादा 2003 से ज्यादा आने लगा और वीगन यानी जो मिल्क प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते और डेयरी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते, तो 23 तक देयर वर 100 मिलियन वीगन्स अराउंड द वर्ल्ड और पीपल started experiencing lifestyle disease like cholesterol, diabetes, etc. वीगन बढ़ गए जो मिल्क यूज नहीं करते हैं, तो मिल्क का डिमांड कम हुआ उस रीजन से। प्लस दूध पीने से कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज होता है, बहुत लोगों को ये डिजीज होने लग गई। और ये व्यू था कि काउ मिल्क पीने से ये टाइप 1 डायबिटीज होती है, राइट। और इसलिए लोग डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क को भी अवॉइड करने लग गए। इसकी वजह से हेल्थ की वजह से भी क्या हुआ, मिल्क का डिमांड कम हुआ। दे आर हाई इन सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में ज्यादा फैट होते हैं और वो कोलेस्ट्रॉल भी इससे ज्यादा होता है। This disease discouraged consumers to move away from milk consumption, and there were alternatives or alternatives available थे, soya milk, almond milk, right? Price of milk kept cooling down, तो डिमांड कम होगा तो ऑब्वियसली प्राइस कम होते गया। और as this new alternatives to dairy milk started becoming a trend, तो यहाँ पे भी सब कुछ क्वेश्चन में ही है और ये क्वेश्चन भी इजी है कि आफ्टर द व्हाइट रिवॉल्यूशन व्हाट वर द फैक्टर्स ऑन बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड दैट चेंज इंडिया टू बी लीडर इन अ मिल्क प्रोडक्शन। डिमांड और सप्लाई साइड दोनों के फैक्टर्स बताने हैं। व्हाइल लिस्टिंग आउट ईच फैक्टर, illustrate with stable diagrams how it impacted the demand and supply curve in the dairy milk product। और देखोगे अगर 23 और 24 का पेपर अगर तुम लोग देखोगे तो डायग्राम वर्ड तुम्हें मिलेगा केस स्टडी में, या तो यहाँ पे लिखा ही है और इस क्वेश्चन में भी लिखा है और 24 में उन लोग ने यहाँ पे लिखा। तो केस स्टडी में यू बी प्रिपेयर्ड एवरीवन कि हमें डायग्राम बनाना ही है और इसके लिए तुम लोग प्रिपेयर रहोगे। 23 का सॉल्यूशन तो है बट केस स्टडी में मार्क्स मिला नहीं है, अटेम्प्ट नहीं किया होगा या
तो इसका पेपर तो हम नहीं देखेंगे, और ये बहुत इजी था। अब क्या है यहाँ पे कि पहले हम डिमांड फैक्टर्स देखेंगे, तो डिमांड का फैक्टर्स तो मैंने बोला कि ये लास्ट के 2 पैरा में ही है। तुम लोग भी बता सकते हो कौन कौन, क्या फर्स्ट फैक्टर क्या है, ये पैरा में क्या फैक्टर है फर्स्ट? यस, चेंज इन लाइफस्टाइल। चेंज इन लाइफस्टाइल। चेंज इन लाइफस्टाइल नहीं लिखा है, एक्सपीरियंसिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस। Sir, lifestyle diseases, different lifestyle diseases like diabetes and कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज cholesterol. डिजीजेस लिखना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा? ये इंक्रीज इन वीगन कल्ट। इंक्रीज इन वीगन कल्ट एक लिखोगे फैक्टर, और उसका डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होगा? डिमांड विल डिक्रीज। देन ये वाला लिखोगे लाइफस्टाइल डिजीजेस, कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज, और इसकी वजह से भी डिक्रीज इन डिमांड, इसकी वजह से भी डिक्रीज इन डिमांड। सर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल जब हुए तब। क्या बोलते हो? सर one more reason can be availability of alternatives. Availability of alternatives, yes, that is in this pair. Yes sir. Availability of substitutes, that is soya milk and almond milk. तो ये तीनों में डिक्रीज इन डिमांड आएगा, डिक्रीज इन डिमांड आएगा, और डिक्रीज इन डिमांड का ही डायग्राम बनाना है, ठीक है ना? 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बट सर ये तो व्हाइट रेवोल्यूशन के बाद बोल रहा है ना, तब तो डिमांड भी बढ़ा था क्योंकि तभी ना इंडिया लीडर हो गया था मिल्क का। आफ्टर व्हाइट रिवॉल्यूशन, बट यहाँ पे कहीं भी लिखा नहीं है कि डिमांड बढ़ा था। नहीं सर लिखा तो नहीं है बट ये दिखा रहा है ना। नहीं, सप्लाई बढ़ा था ऐसे लिखा है। ग्लोबल लीडर हो गया मतलब प्रोडक्शन में, अच्छा डिमांड का नहीं। प्रोड्यूस करने में ना, नॉट कंज्यूम करने में ग्लोबल लीडर हो गया। ओके तो वो ओके। एक्सपोर्ट करने लग गया, गुड्स ज्यादा बन रहा था और डिमांड उतना नहीं था, तो वो एक्सपोर्टर बन गया। बट डिमांड बढ़ा ऐसे हम कहीं भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डिमांड वर्ड डायरेक्टली इधर आया है, और हाँ। यहाँ पे लिखा है कि डिमांड में जो भी चेंजेस हुआ वो क्या हुआ, वो यहाँ से ही दिया है, राइट? हाँ हाँ हाँ, यहाँ से तो फिर डिमांड डिक्रीज ही है। यस यस, राइट। ओके ओके। और फिर सप्लाई साइड फैक्टर्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। क्या सप्लाई साइड फैक्टर्स है, ठीक है ना? व्हाइल लिस्टिंग और आफ्टर द व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला है, तो हमें ये पैरा वाले सप्लाई फैक्टर्स नहीं डिस्कस करेंगे, ये वाले फैक्टर्स नहीं डिस्कस करते हैं। आफ्टर द रिवॉल्यूशन पे सप्लाई फैक्टर्स इस पैरा में जो है वही मिलेंगे, राइट? क्योंकि लास्ट के 2 पैरा में तो डिमांड फैक्टर्स है। तो क्या फैक्टर्स है यहाँ पे? 2 फैक्टर भी लिख दोगे तो काफी है। कौन से फैक्टर्स मिलेंगे यहाँ से? बताओ। So increase in the supply. हाँ, increase in supply, but by which factors? Sir, by milk and What? सर टेक्नोलॉजिकल अवेलेबल। Modern management and technology was made available, and वो कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? क्या मेन था? ऑपरेशन फ्लड, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, तो ऑपरेशन फ्लड की वजह से विलेज मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज were formed, and inputs, modern management and technology were made available, है ना, to all the village milk producers. तो ये 2 ही फैक्टर लिखने हैं, क्योंकि ये पैरा में वही है, राइट? तो उसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज, तो इतना ही हमें लिखना है। और ये 5 फैक्टर्स लिख के हो गया फर्स्ट का तो आंसर। सेकंड का अब क्या दिया, ये भी अभी देखो, कोई सेकंड क्वेश्चन है वो तुम यहाँ से इतना जज नहीं कर सकते, ठीक है? ये केस स्टडी दिया है, बट दिया क्या है? गिवन द डायनामिक्स ऑफ मिल्क डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड कम हो रहा है और सप्लाई बढ़ रहा है, ये डायनामिक्स है मिल्क डिमांड एंड सप्लाई का।
what would happen to the demand and supply dynamics of mithai or Indian sweet industry? Explain with the diagram. तो यहाँ पे अब बहुत सारे एजम्पशन पे बेस्ड है. यस पार्थ, बताओ. सर सॉरी एक डाउट है छोटा. सर ये फिर सब जितने भी हैं इन क्वेश्चन नंबर 1, तो वो सब सर शिफ्ट इन सप्लाई होगा, शिफ्ट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन सप्लाई का भी होगा ना, क्योंकि प्राइस की वजह से कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. हाँ, मतलब क्या बोल रहे हो? शिफ्ट इन डिमांड और शिफ्ट इन सप्लाई का इंडिविजुअली हो सकता है. हाँ, मतलब हर एक चीज का लिखेंगे इसके अंदर, जैसे कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल डिजीज आई तो उसके वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड हुआ. तो वो एक मतलब ये लिखा है ना इसके अंदर, बाय लिस्टिंग आउट इलस्ट्रेट विद द सुटेबल डायग्राम्स. हाँ, आई एम आस्किंग अबाउट द सुटेबल डायग्राम्स. यस, बट वो हर का डायग्राम नहीं बनाना है. मतलब पूरा डिजीज का एक ही डायग्राम बनाओ, अवेलेबल ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का एक ही डायग्राम बनाओ, राइट? Sir, can you show the diagram, sir, once, please? डायग्राम ना, डिक्रीज इन डिमांड का शो ना दिस. Okay. डायग्राम विल बी सेम ओनली. कोई भी केस स्टडी आए, डायग्राम डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड का आना चाहिए कि राइट में बनाना है, लेफ्ट में बनाना है, बस. बट सर एक ही डायग्राम में दोनों शिफ्ट दिखाएंगे ना. नहीं, अलग अलग बनाना है. वही मैं अच्छा, डिमांड का अलग मतलब देखो डिक्रीज इन यहाँ डिमांड पे का क्या अलग हो. लिखा है? While listing our each factor, illustrate with suitable diagrams. एक डायग्राम नहीं लिखा है ना? नहीं नहीं, तो सर डिक्रीज इन डिमांड बनेगा और इंक्रीज इन सप्लाई दोनों अलग. हाँ, दो अलग बनाओ. अब Okay. यहाँ लिखा है एक्सप्लेन विद अ डायग्राम. यहाँ एक ही डायग्राम बनाना है मिठाई इंडस्ट्री के लिए, राइट? यहाँ हमें दो नहीं बनाना है, समझे ना? मिठाई इंडस्ट्री का अब क्या होगा? मिठाई के डिमांड और सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट होगा बताओ? दूध की डिमांड कम हो गई और दूध की सप्लाई बढ़ गई, तो मिठाई की सप्लाई पे पहले क्या इम्पैक्ट होगा? हाँ, what will be the impact on the supply of mithais? So supply of the mithais will be more and the demand will be less. Supply will increase of mithai, right? है ना? Right? Why it will increase? Because मिठाई दूध से बनती है और दूध सस्ता हो गया, दूध की प्राइस कम हो गई, इनपुट कॉस्ट कम हो गया, राइट? तो सप्लाई ऑफ मिठाई will increase, right? Because supply of milk is increasing, milk बच रहा है, milk की प्राइस कम हो रही है, right? तो cost of producing the मिठाई will reduce, and cost reduce होता है तो producer ज्यादा produce करता है, तो supply of मिठाई will increase. अब डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होगा? डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होगा? डिमांड विल डिक्रीज ओनली ना. यस, डिमांड विल डिक्रीज, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स लोग कम यूज करने लग गए हैं ना, राइट? और मिल्क का डिमांड कम हुआ है तो ऑब्वियसली मिल्क प्रोडक्ट्स का भी डिमांड कम ही होगा, राइट? और डिक्रीज ही लिखना है, राइट? और दोनों का एक ही डायग्राम बनाना है, यानी इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन डिमांड, जैसे कि मिल्क का था वैसे, तो वो भी यहाँ पे डायग्राम रहेगा, साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई. इसमें तो क्या हो रहा है, ये तो दोनों, ये वाला नहीं है, ये तो इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई का है, तो डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई उसमें होगा F4. सप्लाई ये तो उल्टा है, राइट? डिक्रीज इन डिमांड वो इसमें है नहीं, बट तुम्हें क्या करना है, यानी सिंपल है कि जो डायग्राम है उसमें जो सप्लाई कर्व है वो राइट में बनाओगे और डिमांड कर्व लेफ्ट में बनाओगे, ठीक है ना? तो क्या करना है, डिमांड कर्व को लेफ्ट में शिफ्ट करना है और सप्लाई कर्व को राइट में शिफ्ट करना है. क्लियर है ना? डिमांड कर्व को लेफ्ट और सप्लाई कर्व को राइट में शिफ्ट करना है. सो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई. तो सप्लाई कर्व तो ऐसे राइट में शिफ्ट हो जाएगा
और डिमांड जो ऊपर बनाया राइट में, वो राइट में नहीं बना के इधर नीचे बनाओ, तो वो तुम्हारा डायग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे एक ही डायग्राम है, यहाँ पे एक ही डायग्राम है, राइट। सर एक बार शिफ्ट इन डिमांड और सप्लाई का दिखाओ ना सर डायग्राम। This is increase in supply, and this D1 you will produce, you will draw on the left side here. तो जो इस केस स्टडी का डायग्राम है वो बन जाएगा, खाली ये D1 इधर शिफ्ट करना है, राइट। तो the new equilibrium point will be different. New equilibrium point यहाँ पे बनेगा। सर ये जो इक्विलिब्रियम का जो Q1 है वो दोनों सेम लाइन में क्यों है सर? इट शुड बी ऑन डिफरेंट लाइन ना। इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि अगर दोनों चेंज होता है और दोनों इंक्रीज हो रहा है और दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों अगर 10% से इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस विल बी सेम। But sir, Right. it is not yet said that the price is constant and this thing, no? नहीं, Because price it का is उन्होंने just कुछ दिया increase ही in नहीं है। supply. डिस्टेंस विल नॉट मैटर, डिस्टेंस विल नॉट मैटर, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये पहले भी बताया है कि जब हमने डिस्कस किया, तो अगर इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई में अगर डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है और सप्लाई कम बढ़ रहा है तो प्राइस विल इंक्रीज। This I have already explained in one of the lectures of the case study only, कि the distance कितना बनाओगे उसके ऊपर तुम्हारा प्राइस अपने आप या तो सेम आएगा, अगर डिस्टेंस सेम है दोनों बढ़ रहा है तो सर distance बिकॉज same है सप्लाई अगर चेंज होता है तो प्राइस भी चेंज ही होगा ना, क्योंकि सप्लाई प्राइस बढ़ेगा तो ही सप्लाई बढ़ेगा ना, और अगर प्राइस सिर्फ गिरेगा तो supply सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। सिर्फ सप्लाई चेंज होगा तो प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, लेकिन सप्लाई और डिमांड दोनों सेम क्वांटिटी से अगर इंक्रीज होंगे तो प्राइस विल नॉट चेंज। व्हाट आई एम सेइंग समझे, ये डायग्राम खाली सप्लाई चेंज का नहीं है, डिमांड भी चेंज हुआ, सप्लाई भी चेंज हुआ और दोनों सेम क्वांटिटी से चेंज हुआ, देयरफॉर प्राइस इज सेम। क्लियर? Okay, sir. So just 1 minute. I'm just drawing this diagram. Yes, yes. This is file number 15, right? 15, हाँ। ये सब कुछ तुम लोगों के पास अवेलेबल है, ड्रॉ कर लो अभी भी, और भी किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लो, बट ये सारे फाइल्स ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, तो वहां से तुम लोगों को ये सब मिल ही जाएगा। Sir, Yes. sir, sorry to listen, but sir अगर प्राइस दूसरा बनाओ लाइक P और P1 बनाओ और क्वांटिटी Q और Q1 बनाओ और सप्लाई दोनों अलग अलग हो तो चलेगा ना सर? देखो, तुमको जब भी ये साथ वाला डायग्राम बनाना है ना, तो तुम्हें क्या करना है, पहले P1 और Q1 मार्क नहीं करना है। क्या सर? आप रिपीट कर सकते, आपका आवाज नहीं आया। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये डायग्राम जब बनाओगे साइमल्टेनियस शिफ्ट, तो यू विल नॉट मार्क, हाउ यू विल ड्रॉ, कि पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद तुम्हें क्या करना है, पहले डी और एस एस वाला बनाना, और अपने आप तुम्हें इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। पहले प्राइस और क्वांटिटी मार्क नहीं करना है। समझ में आया एक चीज? पहले क्या हाँ सर, बनाना है? वो पता है नहीं, सर, अब वो आगे पता सुनो, है। पहले आगे सुनो, ये समझा। उसके बाद तुम्हें सप्लाई कर्व राइट में बनाना है, जैसे इस डायग्राम में बनाया हुआ है। डिस्टेंस जितना भी लेना है तुम ले सकते हो, ठीक है। राइट में सप्लाई कर्व बनाना है, नया वाला S1, और D1 जो है वो लेफ्ट में बनाना है, लेफ्ट में बनाना है। कहाँ पे बनाना है? लेफ्ट में। ओरिजिनल DD के लेफ्ट में D1 बनाना है। अब D1 और S1 जहां पे भी इंटरसेक्ट होगा वहां से नीचे लाइन ड्रॉ करोगे, वो Q1 हो जाएगा, और जहां से लेफ्ट में y एक्सिस की तरफ लाइन ड्रॉ करोगे वो P1 हो जाएगा। तो P1 Q1 you will not mark randomly. हाँ सर, Right. दैट आई अंडरस्टैंड सर, समझ गए सर। ओके, कंटिन्यू। You have to draw the lines and then जो भी आ रहा है P1
वो मार्क कर दो। वो नीचे आ रहा है तो नीचे मार्क करो, सेम आ रहा है तो सेम मार्क करो, और ऊपर आ रहा है तो ऊपर मार्क करो, राइट। साइमल्टेनियस sir. चेंज में तीनों पॉसिबिलिटी है। ऑल द थ्री डायग्राम्स आर राइट। दैट विल डिपेंड हाउ मच डिस्टेंस यू आर टेकिंग ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, राइट। So all the Right. three possibilities are there. Clear? Yes, sir. So ये तो केस स्टडीज था, राइट। तो केस स्टडी तो सबको क्लियर है, केस स्टडीज तो क्लियर है। थियरी भी देख लेते हैं 23 में, और क्या बहुत सारा थियरी भी आया था 23 में, बिकॉज उसमें पार्ट ए थियरी पे था। बट थियरी आए या नहीं आए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे 24 में भी क्वेश्चन आया था, जो हमने कल डिस्कस किया था। 23 में भी एक क्वेश्चन आया है, और अगर तुम 22 का पेपर देखोगेगा तो 22 में भी उस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे तो एक क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे, क्योंकि हर बार आया ही है तीनों पेपर में, राइट। चांसेस आर मोर कि वो, क्योंकि अलग वो कहीं इंक्लूड भी नहीं होता है, वो डिमांड सप्लाई में भी इंक्लूड नहीं होता है, राइट। वो हमारा जो कंज्यूमर है उसमें भी इंक्लूड नहीं होता है। तो उस पे कुछ एक क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। वो जो भी अब टेक्स्ट बुक में जहाँ पे भी है वो तो मार्क करोगे, और क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है, राइट। बट तुम्हें डायग्राम उसका पता होना चाहिए। डेटा दिया है तो उससे डायग्राम कैसे बनाते हैं वो तो मैंने तुम लोगों को बताया ही था कल। बट डेटा नहीं दिया है और ऐसे क्वेश्चन है जैसे डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स that can lead to shifting of the production possibility curve of an economy. Identify a situation where an economy can move from a given point on the production possibility curve to a point inside it. अंदर के पॉइंट पे कैसे शिफ्ट हो सकता है। तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का थियरी है ना, वो तुम लोगों को कौन से पेज पे है, मैंने मार्किंग करवाया है ना, कौन से पेज पे है तुम्हारे बुक में। और देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन से इसमें था वो। पीपीएफ वाज इन व्हिच, किसी को याद है कौन सी फाइल में था वो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाज इन व्हिच फाइल, कौन से चैप्टर में है वो। कंज्यूमर कौन सा वाला पूछ रहे हो? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसमें था। पीपीसी फर्स्ट चैप्टर इसमें है वो, हाँ। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में होगा। तो लेट मी चेक। वो एल डिवीजन का था ना, आपको आपने कराया था ना एल डिवीजन वाले में से, में है उसके इसमें अच्छे से दिया था ना, फर्स्ट वाले में ही था। और ये रहा पीपीएफ वाला जो था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये वाला, ये तो वर्ड फाइल है। हाँ तो वो फर्स्ट वाले इसमें होगा फिर, ये तो सॉल्व किया गया, ये तो हमने कुछ सॉल्व किया था वो फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में होगा फिर। राइट, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है। और ये स्कैरसिटी, 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये सब तुम्हारे बुक में है ही, तो ये सब पढ़ना नहीं है। देखो ये पीपीएफ है यार, है ना। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि पीपीएफ क्या होता है। सिंपल, पहले मैं डायग्राम कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या है, दो प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट। यहाँ पे एजुकेशन हेल्थ केयर बोला है, गुड ए गुड बी बोलो, गुड एक्स गुड वाई बोलो, राइट। कल भी हमने डिस्कस किया था 24 में, जो एक क्वेश्चन नंबर 1 में वो आया था। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम एक्स और वाई एक्सिस पे व्हाट वी आर टेकिंग द क्वांटिटी ऑफ 2 प्रोडक्ट्स, 2 गुड्स। और यहाँ पे हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है दैट इज लिमिटेड। तो अगर हम ये 2 गुड्स बना रहे हैं, मतलब 0 एजुकेशन बना रहे हैं, एक्स एक्सिस पे जो भी गुड्स है वो 0 बना रहे हैं, तो हम कितने बना सकते हैं। और ये पॉइंट क्या है कि अगर हम y 0 बना रहे हैं तो इतना x बना सकते हैं,
with the available resources. अब अगर मुझे 0x बना रहा और मुझे x बनाना है, तो मुझे कितना y सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं. तो बी पॉइंट पे वही है कि अगर हम कितना x बनाएंगे तो इतना y हमारा कम करना पड़ेगा. वैसे ही जब नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे तो कितना x बनाने के लिए कितना y कम करना, और वैसे ही और आगे आगे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ का x बनाने के लिए बहुत ज्यादा y कम करना पड़ेगा. यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे एक कमोडिटी जो x पे है वो हम इंक्रीज करेंगे और y वाला डिक्रीज करेंगे. तो इट शोज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन दोस टू कमोडिटीज. ट्रेड ऑफ यानी कितना हमें बनाना है, एक ज्यादा बनाना है तो दूसरा कम करना पड़ेगा. ये तो सिंपल लॉजिक है, और इससे ज्यादा हम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते. ये लाइन पे जो भी पॉइंट मार्क करेंगे वो ऑप्टिमम आउटपुट है, वो मैक्सिमम आउटपुट है, और एनी पॉइंट बियॉन्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज नॉट पॉसिबल. एनी पॉइंट बियॉन्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अनअटेनेबल एंड नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके लिए हमें रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए. अगर कोई पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे, इसका मतलब क्या कि हम y वाला भी ज्यादा बना रहे हैं और x वाला भी बढ़ा रहे हैं c से, बट उतने रिसोर्सेज ही नहीं है हमारे पास. तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है. अगर पूछेंगे कुछ भी तो कि आउटसाइड द पीपीएफ पॉसिबल है क्या, इसलिए उन्होंने आउटसाइड नहीं पूछा. उन्होंने क्या बोला है, इनसाइड इट. इनसाइड इट कब बनेगा, है ना. Where can economy move from a given point on a production possibility curve to a point inside it? तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर तुम्हें इनसाइड वाला बनाना है तो इनसाइड कब पॉसिबल है. ये सारे पॉइंट एलोकेटिवली एफिशिएंट है, राइट. एलोकेटिवली एफिशिएंट मतलब ये ए बी सी डी कि ये मैक्सिमम आउटपुट है. एफिशिएंट मतलब हम बना रहे हैं. लेकिन होता क्या है, अब कोई भी अगर प्रोड्यूसर है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, तो वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि उसका बेनिफिट किसमें सबसे ज्यादा है. तो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर विल ऑलवेज चेक कि बेनिफिट किसमें ज्यादा है, और बेनिफिट उसका अगर कम बनाने में ज्यादा है तो वो कम भी बनाएगा. वो अपना मार्जिनल आउटपुट चेक करेगा. हमने वो पढ़ा था कि आउटपुट वाला जो है टोटल मार्जिनल की प्रोड्यूसर कहाँ तक प्रोड्यूस करेगा. तो प्रोड्यूसर विल नॉट प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट. जरूरी नहीं है कि वो मैक्सिमम आउटपुट ही हमेशा प्रोड्यूस करे. प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस, एक सिचुएशन ये हो सकता है कि प्रोड्यूसर का मार्जिनल आउटपुट इज 0 or negative on this PPS. So therefore, the producer will produce less combination and the point can be inside it, right? ऐसे खाली एक सिचुएशन उन्होंने आइडेंटिफाई करने बोला था यहाँ तो, बट ऐसे बहुत सारे सिचुएशन भी और हो सकते हैं. हमारे टेक्स्ट बुक में भी ऐसे कुछ सिचुएशन दिए हैं क्या, आई डोंट नो. ठीक है ना, आई डोंट नो. अगर टेक्स्ट बुक किसी के पास है ना, तुम लोग अभी जब भी थियोरी डिस्कस करते हैं ना, तो टेक्स्ट बुक भी थोड़ा लेके बैठो ताकि तुम लोग मुझे बता सकते हो कि उसके अंदर भी कुछ है या नहीं है, राइट. तो यहाँ पे खाली इनसाइड इज पॉसिबल. अब सिचुएशन कैन बी डिफरेंट. और क्या सिचुएशन हो सकते हैं, कि रिसोर्सेज कम हो गए तो हो सकते हैं. रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो भी इनसाइड द कर्व आएगा. रिसोर्सेज कम हो गए तो भी कम होगा, राइट. और दूसरा क्या है, कुछ भी हो सकते हैं. इनसाइड द पीपीसी के लिए अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है कि रिसोर्सेज है बट हमने यूज नहीं किया. जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर है बट वो काम छोड़ के चला गया, दूसरा हमें मिला नहीं है, तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, राइट. नेचुरल कैलेमिटीज हो सकता है, वॉर हो सकता है ना. जैसे कोविड आ गया तो अपने आप ही पॉइंट इनसाइड हो गया ना, प्रोडक्शन कम होगा. या अभी जैसे ये जो वॉर हो गया था बीच में, है ना, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो वहां पे अभी ब्लैकआउट हो गया था
तो वहां के शॉप्स बन रहेंगे, वहां के फैक्ट्रीज बन रहेंगे. मिसएलोकेशन, इनएफिशिएंसी, देयर कैन बी वेरियस फैक्टर्स जिससे इनसाइड द पीपीसी पॉइंट हो सकता है, बट आउटसाइड द पीपीसी पूछेंगे तो नॉट पॉसिबल लिखना है, राइट. Question 2 numerical we have already discussed. Question 3 also numerical we have already discussed. And question 4 is not there in mid-sem syllabus this year. Question 5 also we have already discussed, right? और जो रिटर्न टू स्केल है ना वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है. और शॉर्ट रन का जो हमने डिस्कस किया है वो तो न्यूमेरिकल में डिस्कस कर ही लिया है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. बट रिटर्न टू स्केल इज डिफरेंट. रिटर्न टू स्केल वाला भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया. और इसके भी सारे न्यूमेरिकल, इसके भी सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये तो 22 का पेपर था, राइट. यस सर रिटर्न टू स्केल एक बार थोड़ा इसका सिनॉप्सिस दे सकते हो क्या? रिटर्न टू स्केल क्या होता है कि मैंने जो मेरी टेक्स्ट बुक में से पढ़ाया था, जो मुझे पसंद है वो मैं बता देता हूँ कि हमने वो कहा था, ये वाला चैप्टर. 3 रिटर्न होते हैं, राइट, है ना. इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग और कांस्टेंट रिटर्न, राइट. रिटर्न टू स्केल वो लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए. जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है जो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 वो शॉर्ट रन के लिए था. तो यहाँ पे मैंने तो ये फाइल से पढ़ाया था, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में कहाँ पे वो भी देख लेना, मैं थोड़ा मीनिंग तो बता देता हूँ. तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वही है जिसमें न्यूमेरिकल आएगा, इसका ये भी नाम है, ठीक है ना. उसमें 3 स्टेजेस होते हैं, उसका डायग्राम वो तो हमने पिछले 3 लेक्चर में काफी डिस्कस किया ही है, राइट. ये वाला तो ये तो वो हो गया, इसके 3 स्टेजेस हो गए यहाँ तक, स्टेज 1. और रिटर्न टू स्केल 3 होते हैं. तो रिटर्न टू स्केल क्या है कि यहाँ पे हम सारे इनपुट चेंज कर सकते हैं. शॉर्ट रन में हम खाली वेरिएबल इनपुट चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम सारे इनपुट चेंज कर सकते हैं. और रिटर्न टू स्केल का मतलब यहाँ पे सिंपल है, क्या याद रखना है कि चेंज इन आउटपुट विद द चेंज इन इनपुट. जैसे इलास्टिसिटी क्या होता है, change in quantity demanded because of change in price, so that is price elasticity. जैसे change in quantity demanded because of change in income, तो वो income elasticity. तो यहाँ पे तुम्हें क्या याद रखना है कि रिटर्न टू स्केल मीन्स कि जो आउटपुट है वो कितने परसेंटेज से चेंज हुआ, इनपुट हमने चेंज किया तो. अब इनपुट मतलब क्या, हमारा ये जो भी ये होता है अपना रॉ मटेरियल, लेबर, जिससे हम गुड्स प्रोड्यूस, राइट. तो यहाँ पे रिटर्न टू स्केल का ये एक मीनिंग है यहाँ पे, जो तुम्हें याद रखना है, तुम्हारी बुक में भी होगा. डिग्री बाय विच द आउटपुट चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ गिवन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ऑल इनपुट. इनपुट चेंज करने से आउटपुट कितना चेंज होगा, that is known as return to scale. 3 होते हैं, constant, decreasing, increasing. कांस्टेंट, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग. Yes. ठीक है ना. तो इसके कोई सम्स नहीं है ना? नहीं, इसकी समझ नहीं, इस पे थियोरी आ सकता है. ओके. अब कांस्टेंट में क्या होता है कि अगर इनपुट हमने डबल किया तो आउटपुट भी डबल हो जाएगा. इनपुट 50% से इंक्रीज किया, आउटपुट भी 50% से, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट, राइट. इंक्रीजिंग रिटर्न किसको बोलेंगे कि इनपुट हमने 50% से इंक्रीज किया और आउटपुट 50 से ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज हुआ. डिक्रीजिंग किसको बोलेंगे, इनपुट 50% से इंक्रीज किया और आउटपुट 50 से कम परसेंटेज से इंक्रीज हो. और यहाँ पे वो मीनिंग लिखा ही है. यस यस सर जो आपने 3 बताया, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट, वो 3 स्टेजेस ही है, राइट? नहीं, वो स्टेजेस नहीं है जो हम कल डिस्कस कर रहे थे. वो तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था, वो अलग था. सर रिटर्न ऑफ स्केल में लाइक जब ज्यादा
लेबर ऐड होगा तो आउटपुट कम हो जाएगा, राइट? नहीं, रिटर्न ऑफ स्केल में अगर कांस्टेंट है तो यहाँ लेबर और ऐसे हम अलग अलग नहीं बोलेंगे, हम इनपुट और आउटपुट वर्ड ही यूज करेंगे. लेबर ऑल्सो कम्स इन इनपुट ओनली, बट वी विल नॉट यूज इनपुट वर्ड, राइट? क्लियर? वी विल नॉट यूज लेबर वर्ड, वी विल यूज द इनपुट वर्ड. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वो वेरिएबल प्रपोर्शन से अलग है, वेरिएबल प्रपोर्शन से अलग है. यहाँ पे मैंने क्या बोल रहा हूँ कि हमारा जो है कांस्टेंट रिटर्न में क्या होगा, इनपुट वर्ड यूज करेंगे. इनपुट जितने से इंक्रीज होगा उतने से ही आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो वो कांस्टेंट रिटर्न. एग्जांपल, डबलिंग द इनपुट एंड आउटपुट आल्सो डबल्स, तो वो कांस्टेंट. या परसेंटेज में बोल सकते हो कि 10% से इनपुट इंक्रीज किया, आउटपुट भी 10% से इंक्रीज हुआ, तो वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. क्लियर है? यस, देयर इज. Sir, ये there was this one sum also, ना, marginal output या total utility, sorry, marginal utility and total utility का, कि the price is increasing or is it constant, and then later on you have to like increase the return of scale That measures. was of short run. That only I said कि वो law of variable proportion short run वो अलग है, रिटर्न टू स्केल अलग है. मैं वही बोल रहा हूँ, वो ये डायग्राम था जो हम डिस्कस कर चुके हैं. This is not return to scale, this is different. This is short run. लॉन्ग रन अच्छा. का जो होता है वो रिटर्न टू स्केल होता है, जो अलग टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा. अच्छा, तो जो मैं what I was saying right now, sir, that is short run. Yes, Okay. that is short Okay. run production function and this is long run production function, right? Okay. So sir, this long run will be in the textbook, right? Yes, ये भी है रिटर्न टू स्केल, ये भी मैंने पेज नंबर लिख के भेजा है. और तो sir, constant return, exactly that we have to write. yes, or you can Okay. learn from this book or anywhere, you can write in your own words also, Okay, sir. right? मीनिंग तो मैं बता रहा हूँ, वो मीनिंग लिख सकते हो. ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का डायग्राम है. यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल और ये लेबर, दोनों इनपुट हम मार्क करेंगे. एक्स एक्सिस पे भी इनपुट, वाई एक्सिस पे भी इनपुट. और कांस्टेंट रिटर्न में क्या करना है, ये तो 45 डिग्री लाइन तो बनाना ही है सारे डायग्राम में. OE कांस्टेंट रिटर्न में दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल द डिस्टेंस ऑफ OA, AB एंड BC. अगर डायग्राम बनाने का कुछ आता है तो ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए. इंक्रीजिंग रिटर्न है तो ये जो OA सबसे बड़ा होना चाहिए, फिर AB उससे छोटा, BC उससे छोटा. डिक्रीजिंग रिटर्न है तो OA सबसे छोटा होगा, AB उससे बड़ा डिस्टेंस होगा और BC उससे ज्यादा होगा. बस इतना ही तुम लोगों को बनाना है. डायग्राम आएगा तो मीनिंग जो मैंने बोला, ये स्टार्टिंग के दो लाइन ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है, आउटपुट इंक्रीजेस एट greater percentage than increase in input. Example, output increases by 25% and input हमने 15% से increase किया. अपने वर्ड्स में भी लिख सकते. तो ये रिटर्न टू स्केल तो कुछ आड़ है ही नहीं. मतलब बस इतना ही याद रखना है, चेंज इन आउटपुट विद चेंज इन इनपुट. चेंज इन आउटपुट ज्यादा है इनपुट से तो वो इंक्रीजिंग, सेम है तो कांस्टेंट, और चेंज इन आउटपुट कम है इनपुट से तो वो डिक्रीजिंग. और डायग्राम का जो मैंने बताया सेम ही है, खाली वो डिस्टेंस चेंज करना है बिटवीन दोस कर्व्स. इसको अपने वर्ड्स में भी लिखो या कुछ भी लिखो. सर एक क्वेश्चन बताओ ना उसका, ये रिटर्न टू स्केल परसेंट. क्वेश्चन कुछ नहीं है. देखो अभी जो एक क्वेश्चन तो हमारे पास 23 में आया है, क्या क्वेश्चन तो हमारे पास कोई है नहीं ना उसका. 23 के पेपर में ही था क्या रिटर्न टू स्केल. तो आ भी सकता है, नहीं भी. देखो तुम लोगों को 6 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ठीक है. तो 6 क्वेश्चन के लिए अगेन आई एम सेइंग कि तुम लोगों का पहले तो एक तो केस स्टडी है, वो तुम लोगों को पता है. 3 सम मैं गारंटीड बता चुका हूँ क्या आने वाले हैं, राइट, हमने डिस्कस किए हैं. तो 4 क्वेश्चन तो तुम्हारे श्योर शॉर्ट तुम्हें पता है क्या आने वाले हैं. 2 क्वेश्चन में से PPF हो गया और ये रिटर्न टू स्केल हो गया, राइट. और क्या क्या आ सकता है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर तो उसमें ही आ जाएगा, वो डिमांड वाले क्वेश्चन में, वो अलग से नहीं आएगा.
पिछली बार अलग से आया है, राइट। हाँ, और एक क्वेश्चन और आ सकता है, अगर न्यूमेरिकल उन्होंने ज्यादा दिया तो एक और जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो भी याद रखो कि 4 न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं तुम लोगों को। एक तो केस स्टडी है, बचे हुए 5 में से 3 न्यूमेरिकल तो श्योर है, एक इलास्टिसिटी पे अलग से ही न्यूमेरिकल भी आ सकता है, जिसमें सम के अलावा उसमें वो लोग बोल देंगे एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, या एक्सप्लेन प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी, और एक न्यूमेरिकल उसमें दे देंगे। तो वैसे भी हो सकता है। तो इलास्टिसिटी पे भी कुछ ना कुछ आएगा ही, वो हो सकता है डिमांड में वो लोग इंक्लूड करें, राइट, या अलग से भी, मुझे जो लग रहा है अलग से आने का ज्यादा चांस है इलास्टिसिटी पे, राइट। तो एक ही क्वेश्चन और बचता है, जो उसके लिए तुम्हें क्या याद रखना है, रिटर्न टू स्केल, पीपीएफ, इंडिफरेंस कर्व और आइसोक्रोमेटिक, है ना। इतने ही याद रखने हैं तुम्हें, इतने ही टॉपिक और खाली देख लो, और इलास्टिसिटी का मीनिंग तो पता होना चाहिए, जो हमने डिस्कस किए कि उसके अंदर जो आएगा। तो ज्यादा तुम्हारा सिलेबस नहीं है, शिफ्ट इन डिमांड एंड वो आना चाहिए, राइट, उसके अलावा ये आना चाहिए, और क्या आएगा, बस 1-2 क्वेश्चन और आने वाले हैं, और इलास्टिसिटी पे क्वेश्चन आया तो तुम लोगों के पास ज्यादा कुछ है ही नहीं, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि ओपन बुक है, खाली बुक में ढूंढ के रखना है। अगेन आई एम सेइंग कि बुक में ढूंढ के रखना है, और न्यूमेरिकल्स और केस स्टडी में फुल स्कोर करना है, जो मिला के न्यूमेरिकल्स और केस स्टडी मिनिमम 65 to 70 मार्क्स तो होने ही वाले, 70 मार्क्स वहां पे फुल स्कोर करो, और वो 30 मार्क्स में अलग अलग आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है, राइट। जो मैं बोल रहा हूँ, डिमांड में से तो कुछ नहीं आएगा वो 30 मार्क्स में, क्योंकि डिमांड का तो सम ही आने वाला है, राइट। कंज्यूमर बिहेवियर में से आएगा नहीं, उसमें अंदर ही आ जाएगा वो, राइट, वो भी मैंने बता दिया। फिर जो तुम्हारा वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन है उसमें से आएगा नहीं, तो रिटर्न टू स्केल क्योंकि उसका ही है तो उसमें से भी चांस कम लग रहा है। इलास्टिसिटी पे आ सकता है, जैसे मैंने बोला, इलास्टिसिटी इज इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड आर्क इलास्टिसिटी का अलग क्वेश्चन, राइट। तो तुम्हारा किस पे आ सकता है, एक क्वेश्चन ना फर्स्ट चैप्टर में, पीपीएफ तो है ही उसके अंदर, पीपीएफ के अलावा जो फर्स्ट चैप्टर में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, उसमें स्कैरसिटी है, एफिशिएंसी है, पेरेटो एफिशिएंसी, एलोकेटिव, और कुछ एक पेरेटो वाला कॉन्सेप्ट भी था, एक एलोकेटिव एफिशिएंसी भी है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी का, और ये सब स्कैरसिटी और वो 3 प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सब में से एक क्वेश्चन आएगा ही। यानी जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें पूरा थियरी है, और उसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा, और उसमें क्या क्या है, पीपीएफ है, वो सब एफिशिएंसी है, प्रॉब्लम, स्कैरसिटी एंड 3 प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये है। ये सब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कहाँ पे है, मैंने शायद भेजा होगा, एक बार चेक कर लो, राइट। ये जहाँ पे भी है ये मार्क करो, और इस पे एक क्वेश्चन आने ही वाला है, तो तुम्हारा वो भी श्योर हो गया, यानी 5 क्वेश्चन तो श्योर हो गया। और मेरे को शायद ये मिला भी नहीं था, भी प्रॉब्लम्स वाला मिला भी नहीं था मुझे कहीं पे, बुक में मेरे को कुछ मिला भी नहीं था, तो वो तो तुम लोग को नोट लिख के लेके जा सकते हो तो लिख लो। बट फर्स्ट चैप्टर में जो भी सिलेबस है, फर्स्ट चैप्टर का देखो, जैसे कि क्या क्या है, तुम लोगों को किसी ने सिलेबस भेजा था, तो मैं वो भी चेक करके बता देता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है। किसी के पास है सिलेबस? लेट मी सर्च इन माय मोबाइल। जो देखो यहाँ पे तुम्हारे इसमें लिखा है ना, मेन क्या है, वही है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, स्कैरसिटी एंड चॉइस, पीपीएफ, 3 क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये एक है, ये पहले भेजा हुआ है, देखो एक इमेज है मेरे पास, इसको मैं वापस ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो पीपीएफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझो कि पीपीएफ पे तो पूरा 15 मार्क्स का नहीं, तो मे बी स्कैरसिटी सब कुछ ऐड करके एक स्टडी टाइप, जिसमें स्कैरसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी वो लोग इंक्लूड कर लेंगे, और उसी में वो लोग पीपीएफ भी इंक्लूड कर लेंगे, राइट। एक इमेज मैंने ऑलरेडी भेजा है, राइट, ये तुम्हारे ग्रुप में ऑलरेडी पहले भी सेंड किया हुआ ही है,
प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा ही, और उसके लिए ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन होगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन होगा, राइट। ये चैप्टर में से हमारा जो क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा, न्यूमेरिकल होगा, जो हमने डिस्कस किया है, और उसी में वो लोग ये शिफ्ट विफ्ट तो केस स्टडी में आएगा, तो इसमें से कोई और क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। इलास्टिसिटी में से एक अलग से क्वेश्चन आएगा जो मैं बोल दिया, और जो न्यूमेरिकल प्लस थियरी मिक्स हो सकता है। तो तुम्हें ये प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम क्रॉस इलास्टिसिटी का मीनिंग और इसके सारे न्यूमेरिकल्स और वो सब पता होना चाहिए, और ये पैराडॉक्स ऑफ बम्पर हार्वेस्ट है, बस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी। तो तुम्हारे 3 क्वेश्चन हो गए। फिर कंज्यूमर बिहेवियर में से भी आएगा ही, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और एक इसमें से आएगा। तो तुम्हारे 6 क्वेश्चन हो गए। सप्लाई एंड डिमांड में से 2, इसमें से 1, इलास्टिसिटी में से 1, कंज्यूमर बिहेवियर में से 1, और इसमें ये क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं वो अभी क्लियर हुआ तुम लोगों को। हाउ द 6 क्वेश्चंस विल कम। इसमें से क्या आएगा, वही शॉर्ट रन ही आएगा। तो रिटर्न ऑन स्केल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो लोग ने ज्यादातर शॉर्ट रन ही दिया है और वो न्यूमेरिकल दिया है, राइट, और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से तो वही आएगा। तो रिटर्न ऑफ स्केल छोड़ भी सकते हो, खाली टेक्स्ट बुक में मार्क करके रखो। कंज्यूमर बिहेवियर में वो आने ही वाला है, लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल, और उसके साथ कुछ थियरी ऐड किया कि ये प्रॉपर्टीज, बजट लाइन क्या होता है, आईसीसी पीसीसी क्या होता है, डायग्राम बनाओ, तो वो भी मार्क करके रखो। इलास्टिसिटी में एक क्वेश्चन आएगा ही न्यूमेरिकल प्लस मीनिंग या फैक्टर्स पूछ सकते हैं थियरी ऐड किया तो, बट न्यूमेरिकल ज्यादा वेटेज रहेगा। न्यूमेरिकल मिनिमम 60 मार्क्स होगा, और इसमें से एक न्यूमेरिकल और एक केस स्टडी, और इसमें से एक फुल थियरी। तो इस हिसाब से ही प्रिपेयर करना है। ये जो मैंने इमेज भेजा इस हिसाब से ही प्रिपेयर करो, तो तुम्हारा पेपर अच्छा ही जाएगा। क्लियर है ना? कुछ डाउट है अभी भी किसी को तो पूछ सकते हो, राइट? यस पार्थ। सर मुझे हम क्वेश्चन पेपर नंबर 22 कर रहे थे, यस, क्वेश्चन पेपर 22 सर, उसके अंदर मुझे ये 62 और 23। 22 सर, यस। उसमें मुझे 6 क्वेश्चन में डाउट है सर। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला सर, इसके अंदर एमआरएस इज 5 राइट? क्या है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में? यहाँ पे क्या दिया है, एमआरएस दिया है 5, और प्राइस ऑफ चिप्स और प्राइस ऑफ चॉकलेट दिया है, राइट? हाँ सर। तो ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था, तुमने शायद वो लेक्चर ज्वाइन नहीं किया। नहीं तो एमआरएस क्या होता है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, क्योंकि एमयू नहीं दिया है, तो हमें प्राइस का रेशियो निकालो। क्या करेंगे हम? प्राइस ऑफ एक्स अपॉन ए, प्राइस ऑफ चिप्स अपॉन प्राइस ऑफ चॉकलेट। तो Okay. 15/5 विच इज 3, राइट? ओके। और यहाँ पे एमआरएस है 5, so that is not equal to the ratio of the price, so therefore consumer is not at equilibrium। और Okay. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे आएगा, ये मैंने ये बताया था कि हम प्राइस तो चेंज नहीं कर सकते, तो हम ये जो 3 है ये चेंज नहीं कर सकते, ये तो 3 ही रहेगा। तो हम ये एमआरएस चेंज कर सकते हैं। एमआरएस का एक फॉर्मूला क्या है, एमयू एक्स अपॉन एमयू वाई, एमयू ऑफ चिप्स अपॉन एमयू ऑफ चॉकलेट। तो हम मार्जिनल यूटिलिटी न्यूमरेटर में है चिप्स का, तो न्यूमरेटर को कम करेंगे तो 5/3 हो सकता है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चिप्स कम करना पड़ेगा, या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चॉकलेट बढ़ाना पड़ेगा। और चिप्स का मार्जिनल यूटिलिटी कम करना है तो हमें कंजम्पशन ऑफ चिप्स इंक्रीज करना पड़ेगा, और चॉकलेट का मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ाना है तो हमें उसका कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा। हाँ सर। दिस आई हैव डिस्कस्ड इन द 3 days बिफोर लेक्चर, जिसमें 22 का पेपर हमने डिस्कस किया था, ओके सर। राइट? और ये सॉल्व भी किया हुआ है, वो फाइल में होगा, राइट? मैं देख लूंगा सर वो। थैंक यू सो मच। कॉन्सेप्ट समझ गया ना? हाँ सर, मोटा मोटी समझ गया। और कुछ किसी को डाउट है? एनी डाउट एनीवेयर? अभी तो हम 3 दिन एफएनई करने वाले हैं, और लास्ट के 2 दिन तो सब लोग एफएनई पढ़ेंगे, राइट? है ना? वैसे अभी तो बाकी सब तो पढ़ के हो चुका होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, अभी तो टाइम ही नहीं बचा है। कुछ भी डाउट है तो मैसेज